तो सबसे पहले तो वी शुड नो व्हाट आर राइट्स. How will you define rights? Reasonable. Reasonable claim. Okay. Reasonable claims accepted by the society and protected, proved by the law. Protected by the law is a better term. Basic guarantees, right? So rights are basically claims, right? Claims by whom? By individuals, citizens. It could be groups also. कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे ना, वो पूरे ग्रुप को मिलेंगे एक साथ. That's also possible. Though fundamental rights are more individual oriented, some of them may be collective also. Okay? Some of them are collective. जैसे रिजर्वेशन जो है उसका प्रोविजन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रिजर्वेशन इटसेल्फ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट रिजर्वेशन में कुछ राइट्स इनहेरेंट है कि नहीं भाई. आर्टिकल 16 के अंडर में ही तो मिल रहा है ना आपको एक प्रोविजन कि आपको रिजर्वेशन मिल सकता है. इट इज सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ सम ग्रुप, राइट? So it's a kind of a group right also, though it is not considered as a fundamental right per se, but वो तो we will discuss it. So claims by individuals, citizens or groups, right? Or their entitlements. Given or protected by the state. अब ये जरूरी नहीं कि सारे राइट स्टेट प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना? सारे राइट स्टेट नहीं प्रोटेक्ट करेगा, बट स्टिल हम लिख रहे हैं अभी. स्टेट, सोसाइटी भी लिख सकते हो. कुछ राइट सोसाइटी भी कर सकती है प्रोटेक्ट. कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, राइट? माय राइट टू मर्डर समवन इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनीवन. So there are many such rights which I cannot exercise. So given or protected by the state or society. Clear? And और कंप्लीट करने के लिए राइट्स का अल्टीमेट पर्पस क्या है? Claims by individuals, citizens or groups or their entitlements given or protected by the state or society, and that helps in building capacity of individuals and society at large, right? And helps in empowerment or capacity building of individuals and society at large. Now, why am I writing this society here? Why not only individuals? Why am I writing the groups also over here? Why not only individuals? क्योंकि राइट्स तो सब इंडिविजुअल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ राइट्स अगर इंडिविजुअल आपके पास अगर फंडामेंटल राइट है सबके पास में, तो क्या सोसाइटी का बेटरमेंट होगा कि नहीं होगा? विल सोसाइटी इंप्रूव और नॉट? क्योंकि अगर एवरी इंडिविजुअल इफ इट इज फ्री टू डेवलप हिज कैपेसिटी, देन द कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी विल आल्सो इंप्रूव, राइट? अगर सब लोग एजुकेटेड होंगे तो सोसाइटी में इंप्रूवमेंट भी होगा, राइट? तो देर हमने डिस्कस किया था पहले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी या लिबरलिज्म. देयर आर टू टाइप्स. व्हाट आर दे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Negative liberalism will talk only about individuals. Positive liberals will look at the positive side of individualism, its positive impact also on the society. Right? कि हर इंडिविजुअल का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी भी है, तो आपको फ्रीडम दिया जाए जिससे सबका भला हो, राइट? हेलमेट पहनाना इज अ पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी? पॉजिटिव, राइट? बिकॉज स्टेट इज going out of its way to protect you. एक तो होता है कि मुझे पूरा फ्रीडम दे दो, my freedom that I will not wear helmet, right? That's your freedom. So that's negative liberty. But positive is something extra. And is it good for wearing helmet? Is it good only for your own self? If you will wear helmet, it is good for your family or not? Or maybe your extended family, maybe your friends, or maybe if you are a leader, then it is also helpful for the society if you are protected.
So there is a connection of individuals with the society. So this will make a complete definition from negative liberal aspects, from positive liberal aspects of what rights are. Clear? Okay. Now we will look at the types of rights. What are the types of rights? So here let's draw some circles. Okay. We are talking about I'm not writing in order. These are the types of rights: human rights, constitutional rights, fundamental rights, natural rights, legal rights. I have not put in any order as such. I will try to very briefly explain these here, right? What these rights are. And here we should have had 5 circles. So let's draw one more. So if this is one, or let's say A, B, C, D, and E, this is 1, 2, 3, 4, and 5. So can you match them? Which one is which? First one is natural rights. Last one is, fifth one is natural rights or human rights. First one is human. अच्छा 1 और 5 बताओ क्या होगा? 1 क्या होगा और सबसे ब्रॉड जिसका होगा स्कोप, दैट इज नंबर 5. सबसे ब्रॉड किसका स्कोप है इसमें? नेचुरल राइट्स का, राइट? अब नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है वैसे तो, लेकिन इन लेमन टर्म्स आई एम जस्ट टेलिंग यू इन वेरी जस्ट टू आवर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, these are rights which are given by the nature, right? Rights given by nature. And rights which are given by the nature are whole set of rights which has been given to you. You can do anything you feel like by nature, right? Do anything you feel like. And in India we also have, we think that we have a lot of natural rights, that we go out and spit anywhere we feel like, so full freedom. Exercise of natural rights, full swing. So your right to move your hands all around you, right? And you don't bother who's sitting next. So you can do anything. Your right to kill other people, right to murder, right? Natural rights in very crude term, don't write like this in the exam, just for understanding, is your right to act like a human being and your right also to act like animals, right? You can be barbaric, uncivilized, but we have rights which are given by nature, is a whole set of rights, universal set, all the rights which are there. But out of these rights which are there, which nature is giving you, the freedom which nature is giving you, there are limitations, because we are born human beings, we are not animals. So by virtue of being human, there are certain rights which we will not exercise, certain natural rights which we will not exercise, because it will go against our human dignity. We will not be dignified human beings if we will do those things. So we shall rather not do it, and do only those things which are bringing dignity to us. So those rights which will be granted, which we will have by virtue of being human, are human rights. Is it clear? Out of all the natural rights, those rights which you are exercising by virtue of being human. So these are human rights, are given by whom? This is also natural only, but all natural rights are not human rights. Only those natural rights are human rights which will help you to maintain your dignity as human being. So rights by virtue,
rights by virtue of being human, right? Or you can say rights that help in maintaining dignity. Human dignity also you can say, just write dignity, it's fine. Right? So who has given you that your human rights? Naturally you have. So human rights are not given by the state. People are born with human rights. People are born with human rights. ठीक है? Now human rights में बहुत सारे rights आ जाएंगे. The rights which will be given to you to do every or expect every possible thing that will help you as a human being. Yeah, your right to get education, right? Sometimes you can even say my right to have a post graduation. This is a right. I need to have a postgraduate degree also. I mean, I'm just giving an example. So it could be anything. It could be your right to eat, right to have good education, right to health, right to environment, right? Right to leisure, right to entertainment, right? Your right to whatever, compete, anything. इतना इतने सारे राइट्स होंगे उसमें कि वो सारे के सारे राइट्स को मेंटेन करना आसान नहीं होगा, राइट? ये आपके पास है तो नेचर ने तो दिए आपको, लेकिन बिकॉज एवरीवन हैज दीज राइट्स, राइट? सो वो सारे राइट्स आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो. लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो उनके ह्यूमन राइट्स मेंटेन नहीं हो पा रहे, राइट? सो गवर्नमेंट कैन इट एंश्योर ऑल ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग? That will become a utopian society, right? It's an ideal society where all the human rights of all the individuals are fulfilled and respected. तो आइडियल सोसाइटी हो जाएगी, राइट? वो पॉसिबल नहीं है. तो स्टेट को फिर चूज करना पड़ेगा कि कौन से राइट्स ऐसे हैं, ह्यूमन राइट्स में से कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसको हम मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू आवर प्रेजेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेस. हमारी जितनी आज की कैपेसिटी है, हमारे पास जितना रिसोर्स है, उसके बेसिस पे हम कितने राइट्स लोगों को के मेंटेन कर सकते हैं, तो उतना ही वो लीगली एंश्योर करेगी. ठीक है? सो ह्यूमन, आउट ऑफ ऑल द ह्यूमन राइट्स, certain rights are protected by the state or by the law, which are called as legal right. So rights, or you can even say human rights also. ठीक है? Rights or human rights protected or guaranteed by the state or law, right? These are called as legal rights. Of course state जब protect करेगा तो law से ही करेगा ना protect, तो वो legal right बन गए. तो यहाँ पे नंबर 5 क्या है? नंबर 5 is natural rights. नंबर 4 क्या है? Human, sorry, number 5 is here. 4 is human rights. Number 3 is out of legal rights, some legal rights are even more important, which needs to be protected in the constitution itself. ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आप कर दोगे तो वो राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं? क्योंकि वो राइट्स आपसे इजीली वापस नहीं लिए जा सकते. उसको वापस लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. लीगल राइट अगर आपको दिए गए तो वो वापस इजीली लिए जा सकते हैं लॉ को ही अमेंड करके, जो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है. लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में तो यही अंतर है ना. लीगल राइट आपसे इजीली लिया जा सकता है वापस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इजीली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक बार दे दिया तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्ट हो गया, उसके लिए फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी उसको चेंज करने के. लेकिन लीगल राइट इजीली चेंज हो सकता है. राइट टू इंफॉर्मेशन इज व्हाट? लीगल राइट और इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? लीगल राइट है, क्योंकि वो आरटीआई एक्ट में दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है. वो रेफर करते हैं कि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस फंडामेंटल राइट, बट बाय इटसेल्फ इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट ओनली, बिकॉज उसका सोर्स, उसका ओरिजिन कहाँ है? लॉ में है, आरटीआई एक्ट में है. आर वी गेटिंग द पॉइंट?
So legal right is clear to us, the rights which are protected by law or by. Then there is a constitutional rights are rights which are protected by the constitution. Rights protected by a higher law, can I write? By higher law, that is constitution. Constitution is a higher law. तो ये ज्यादा प्रोटेक्ट हो गए, क्योंकि इसमें चेंज करने के लिए फिर आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी. आरटीआई एक्ट तो रिपील भी हो सकता है, नॉर्मल लॉ है ऑर्डिनरी, पार्लियामेंट चाहे तो रिपील कर दे. नाउ आउट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑल्सो there are certain rights which are even more important and sacrosanct, which are protected even against the transient power of the legislature. उन राइट्स को अमेंड करना भी इजी नहीं है. फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना इजी नहीं. इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू भी अगर चेंज किया जाएगा तो उस पर भी क्वेश्चन होगा, वो बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट? भाई आर्टिकल, अभी ये बताओ मुझे, लेट्स सी इफ यू कैन गिव द आंसर. आर्टिकल 13 में जो टर्म लॉ है ना, उस लॉ का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 नाउ टुडे? बोथ ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ. सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर, ये ऐड करना जरूरी है. The term law in Article 13 now, what is the position? It means both the laws but subject to basic feature of the Constitution. अब अगर वो बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर है, तो आप फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते हो. आप अमेंड करो, इंक्रीज करो, या ऐसे अमेंड करो कि उसका जो नेचर है वो घटे नहीं, या तो उतना रहे या तो बढ़े. प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो यही होगा. या कोई ऐसा फंडामेंटल राइट जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मान लो कल सब लोग एजुकेटेड हो गए, right? If everyone gets educated and government says that we are removing 21A, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसका जरूरत नहीं है, तो बेसिक फीचर नहीं है. कह सकते हैं ऐसे, पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल. तो बेसिक फीचर भी बहुत डायनेमिक है ना, क्या है क्या नहीं है वो भी चेंज होते रहेगा. एवरीथिंग will keep on changing. But this is a correct explanation you will give, that Article 13 includes both the law, ordinary as well as constitutional amendment, subject to basic feature of the constitution. Finally, so fundamental right क्या हुआ? These are those rights which are even more protected. यहाँ पर आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं कई बार चेंज कर पाओगे, क्योंकि वो बेसिक फीचर की तरह डिक्लेयर कर दिया गया होगा. ठीक है? सो प्लीज राइट फॉर फंडामेंटल राइट्स, प्लीज राइट द डेफिनेशन. These rights are more sacrosanct. These rights are more sacrosanct. More sanctified, like more important and something which is of a higher, nature, are more sacrosanct and protected against the transient legislative or constituent power of the parliament. Transient legislative or constituent power of the parliament. अब इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिएंट मतलब पार्लियामेंट का पावर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा? What is the basis when parliament become more powerful? When the party has a complete majority. तो कभी majority होगी, कभी नहीं होगी. तो ट्रांजिएंट हो गया, चेंजिंग नेचर हो गया. पावर ऑफ पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी है वो ट्रांजिएंट हो गई. कभी वो बहुत इजीली अमेंड कर लेगी, कभी उसको डिफिकल्टी होगी. तो हम इस बात पे नहीं उसको छोड़ सकते कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर होगी. ठीक है? क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास पावर हुई तो वो चेंज कर देगी. तो केवल ये कहना कि पार्लियामेंट की कैपेसिटी को कम कर दे की लिमिट है, उससे काम नहीं चलेगा. हमें उसके लिए एक स्पेशल पार्ट बना के सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया. एंड देन वी आल्सो सेड नो लॉ शैल गो अगेंस्ट दिस, एंड देन बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई. ठीक है?
अभी just add one more term there. What you have written? What is the last word? Power of constitutive, legislative or constituent power of parliament, and are also protected by the basic values inherent in the constitution. बेसिक वैल्यूज इनहेरेंट इन द, देखो मैंने यहाँ पे बेसिक फीचर नहीं यूज किया है, बेसिक वैल्यूज इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसे जनरलाइज कर दिया है, क्योंकि ये बात बेसिक फीचर के कॉन्सेप्ट के पहले भी तो लागू होगी, जब वो नहीं आया उसके पहले भी तो ये देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। प्रियम्बल में ही आपने लिख दिया है लिबर्टी होनी चाहिए, राइट? तो वो भी तो गाइडिंग फोर्स हो गया ना फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो तो वैल्यूज इनहेरेंट हो गई। लिबर्टी एज अ वैल्यू आप प्रोटेक्ट करोगे कि नहीं? तो लिबर्टी एज अ वैल्यू अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। यस, व्हाट? या वी कैन, बट देन देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग, बिकॉज उसमें जब हमने ये लिखा ना protected against, who's protecting? Obviously who will protect? Supreme Court is acting on behalf of the constitution to protect it, that is understood. सुप्रीम कोर्ट तो हम फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट वर्ड नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, किस तरह से डेफिनेशन, जो सिर्फ जनरलाइज डेफिनेशन होनी चाहिए। तो दिस डेफिनेशन यू कैन फॉलो फॉर फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट को बहुत लोग ये तो बोलते हैं इट्स एन इंपॉर्टेंट सेट ऑफ राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट द मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ट्रांजिएंट पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। कितनी भी पावर लेजिस्लेचर के पास आ जाए लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज में। सो वी आर क्लियर अबाउट दीज 5, राइट? सो ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, 2 हो गया, और 1 हो गया फंडामेंटल राइट। एक क्वेश्चन आया था राइट टू वोट के बारे में 2-3 years back, and there were a lot of controversy related to that. Right to vote, is it a constitutional right or is it a legal right? लीगल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है? अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है राइट टू वोट वर्ड यूज हुआ है उधर, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में क्या लिखा है? दैट these people, like those who will qualify, they have the right to get registered themselves as voters. ये लिखा है 326 में। 326 में ये नहीं लिखा कि everyone has got the right to vote। क्या लिखा है? Individuals have the right to get registered as voters, ठीक है? फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और इलेबोरेटली लिखा है और क्लियरली लिखा है राइट टू वोट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट तो लॉ हो गया, लीगल हो गया। तो ये लीगल राइट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है, इसलिए क्योंकि आपने रजिस्टर किस लिए कराया था अपने आप को वोटर लिस्ट में? चाय समोसा खाने के लिए कराया था, वोट देने के लिए किस लिए कराया आपने? वाई? वोट देने के लिए कराया, राइट? तो अगर आप रजिस्टर हो जाओगे तो वोट देने का राइट आ जाएगा ना आपके पास। तो राइट टू वोट कहाँ है? 326 में तो है। वर्ड नहीं लिखा है ना, नहीं लिखना चाहिए साफ साफ, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए साफ साफ ठीक लिखा है उधर, लॉ में उसको और क्लियरली बता दिया, क्लियरली लिखा हुआ है उधर। लेकिन इससे भी बड़ा रीजन है एक, दिस इज नो रीजन। The bigger reason is that, which can be given, which is again will not be found in the polity books, would be that जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आप वोट दे रहे हो वही इंस्टीट्यूशन आपको कैसे वो राइट दे सकता है? आप पार्लियामेंट के लिए वोट दे रहे हो तो पार्लियामेंट ही आपको कैसे राइट टू वोट देगा लॉ बना के? है कि नहीं? लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रही है। तो लीगल राइट कैसे हो गया राइट टू वोट? वो एक हायर अथॉरिटी से मिलना चाहिए। सोर्स ऑफ राइट टू वोट शुड बी इन अ अथॉरिटी व्हिच इज हायर देन द पार्लियामेंट एंड व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशन। This is more sound a reason why right to vote is a constitutional right.
वो आंसर में लिख के देखो, आंसर में लिख के देखो क्या होता है, फिर तुम्हारे ऊपर सीबीआई का रेड पड़ेगा। ठीक है, आई मीन सीक्वेंस, क्या पहले आया, यस, हाँ, यू कैन इवन यूज वर्ड, यू नो, what we'll say conceptual chronology. Conceptual chronology also says, right, that this should come before you are giving the, so it should come from the constitution. Okay, okay, so these things. Now there is one more way to classify the rights. ये जो डायग्राम बनाया हमने, इसको बीच से दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और एक हो गया राइट साइड, एक हो गया लेफ्ट साइड. So this one is what side is this? Let's see from your side. So this will become right and this will become left side. Left oriented rights and right oriented rights. हाँ, तो एक लिबरल हो गया और एक सोशलिस्ट हो गया, राइट. तो जो इस साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, these are more of civil political rights. और जो इस साइड है ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है ना. यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स पे दो अलग अलग कन्वेंशन है. देयर इज अ कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड देयर इज अ कन्वेंशन ऑन सोशो इकोनॉमिक राइट्स. दो कन्वेंशन क्यों आया, दो कन्वेंशन, एक ही कन्वेंशन क्यों नहीं आया, कोल्ड वॉर की वजह से, बिकॉज द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, socialist bloc and the liberal bloc. So liberal blocs will focus more on civil political rights and socialist bloc will focus more on the socio-economic rights. तो जब सिविल पॉलिटिकल राइट का कन्वेंशन आया तो सोवियत यूनियन ने उसको वीटो कर दिया, कहा कि अगर आप सोशो इकोनॉमिक राइट्स पे भी कन्वेंशन नहीं लाओगे तो हम इसको पास नहीं होने देंगे. तो फिर उन्होंने सोशो इकोनॉमिक राइट्स का एक और कन्वेंशन लेके आए. तो देयर आर टू कन्वेंशंस, one is supported by liberal, other is supported by the socialist idea. Are we getting the point? So इसको हम अलग से भी लिख लेते हैं. Rights can, there's another classification of rights. Rights can be classified as, अब इसको मैं तीन पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ बस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सिविल राइट्स हो गया एक, सिविल राइट्स को हम बहुत बार सिविल लिबर्टीज भी बोलते हैं, सिविल लिबर्टीज. दूसरा हो गया पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में इंश्योर हो रहे हैं, और इनफैक्ट राइट्स तो इंश्योर ही डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं, तो इसको हम डेमोक्रेटिक राइट भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स. और थर्ड इज सोशो इकोनॉमिक राइट्स. राइट. सो सिविल राइट्स क्या राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स आर द बेसिक सेट ऑफ राइट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, बेसिक राइट्स फॉर, बेसिक राइट्स फॉर कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. आप इंडिविजुअलिटी भी लिख सकते हो. अगर आपके पास सिविल राइट्स नहीं है तो आपके पास राइट टू लाइफ नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. बेसिक राइट्स जो चाहिए एज एन इंडिविजुअल. राइट टू एजुकेशन क्या सिविल राइट्स है? अब राइट टू एजुकेशन के बिना भी तो आप एजुकेटेड हो सकते हो ना, और जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो लिखो ही, राइट, इट इज नॉट नेसेसरी. I mean, you can get educated in a number of ways. आप डायरेक्टली एक्टर बन जाओ, सचिन तेंदुलकर बन जाओ, ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, वो भी एक एजुकेशन है ना. स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी एजुकेशन हो गई, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सपीरियंस एजुकेशन हो गया. हाँ ठीक है, आई डोंट वांट टू से दैट, इट्स अंडरस्टूड, व्हाटएवर.
So all of these things, in this case civil liberties are those set of rights जो कि आपके लाइफ के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. If you will not have that, then you will feel suffocated. You will not be able to live your life properly. बहुत सारे लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं बिना एजुकेटेड हुए, लेकिन क्योंकि उनकी सिविल लिबर्टीज फुलफिल हो रही है. इसमें क्या आएगा? राइट टू लाइफ आएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आएगा, सारे राइट टू फ्रीडम आएंगे, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा. ये सारे राइट्स हुए बेसिक सिविल लिबर्टीज. इनफैक्ट मेनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक सिविल, मोस्ट ऑफ देम. लेकिन पॉलिटिकल राइट्स क्या है? पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स हैं जिसमें आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, अपने इंटरेस्ट को भी और किसी दूसरे के इंटरेस्ट को भी. तो जो ग्रुप राइट्स होते हैं ग्रुप में, लाइक ट्राइबल राइट्स, विमेन राइट्स, दीज आर ऑल्सो पॉलिटिकल राइट्स. क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो? ग्रुप राइट्स में जब आप बात कर रहे हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑफ अ कम्युनिटी, right? So please write for political rights, please write rights that help individuals or groups, rights that help individuals or groups to participate in a political process, to participate in a political process or in pursuit of interests, or in pursuit of interests. Now the moment you come across expression like this, you should always remember these kind of expressions because you can use them in your answers again and again, like pursuit of interests. ठीक है? So that ये pursue their interests. Interest कैसे pursue करेंगे? इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और ग्रुप लेवल पे. अब राइट टू वोट क्या है? पॉलिटिकल राइट है. अगर राइट टू वोट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मर तो जाओगे नहीं, और कितने लोगों के पास है फिर भी नहीं जाते वोट देने, राइट? बट यू से दैट आई विल नॉट लेट यू ब्रीथ, तो वो तो सिविल लिबर्टीज में आ गया. राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? नहीं, इस क्लासिफिकेशन में क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज व्हाट? सिविल राइट है कि पॉलिटिकल राइट? आई मीन राइट टू इंफॉर्मेशन के बिना भी आप नहीं मरोगे, राइट? पॉलिटिकल राइट होगा, ठीक है? एनी अदर राइट विच इज पॉलिटिकल in nature and not civil rights? Are all civil rights political rights or all political rights civil rights? Or political rights are not civil rights, but all civil rights will anyhow help in political. अगर आपको freedom of speech and expression होगा तभी आप एक न्यूज चैनल चला पाओगे, या आप एक जर्नलिस्ट बन पाओगे, कुछ लिख पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे, राइट? अगर सिविल लिबर्टीज ही नहीं होगी तो क्या से पॉलिटिकल एक्सरसाइज राइट्स को एक्सरसाइज कर पाओगे? हाँ, ऑब्वियसली. अल्टीमेट इज दैट ओनली. तो क्लियर है व्हाट इज पॉलिटिकल. ग्रुप राइट्स कौन से हो गए? जिसमें आप एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आ गया उस डेफिनेशन में. मेंस राइट्स, वुमेन्स राइट्स, ट्राइबल राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, ऑल काइंड ऑफ राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, ये सब हो गए, ठीक है? अच्छा. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ, विल टॉक अबाउट इट. वो सब सोशल इश्यूज में ज्यादा आएगा. दिस शुड कम मोर इन द सोशल इश्यूज. मेंस राइट्स मूवमेंट्स, यस. ह्यूमन राइट्स आर सिविल राइट्स. ह्यूमन राइट्स सब में आएगा. वो हमने बनाया ना, ये ऐसे बनाया था, राइट? उसको बी से डिवाइड कर दिया. तो इधर इस साइड कौन से है? सिविल पॉलिटिकल है. इधर क्या है? सोशो इकोनॉमिक है. तो ह्यूमन राइट्स सारे हो गए ना. शैल आई गो बैक? इसमें ये साइड में कौन से राइट्स है? सिविल एंड पॉलिटिकल, बोथ सिविल एंड पॉलिटिकल. तो अब नेचुरल राइट्स के बारे में तो हम बात ही नहीं करते ना, उससे तो हमें देना देना है नहीं कुछ. ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हो, तो ह्यूमन राइट्स सिविल पॉलिटिकल भी होंगे और सोशल. मैंने आपको बताया ह्यूमन राइट्स जब आए तो दो कन्वेंशन आया अलग अलग. उसके बाद आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? सिविल पॉलिटिकल है कि सोशो इकोनॉमिक है? दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा सिविल पॉलिटिकल है, सोशो इकोनॉमिक कम है, बहुत कम. मोस्टली दे आर सिविल पॉलिटिकल. डीपीएसपी ज्यादा क्या है? Are DPSP's rights? DPSPs are rights, but they are not fundamental rights. They are not legal rights, but they are
राइट्स। ह्यूमन राइट्स तो रिस्पेक्ट हो रहा है ना डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करके। तो ये बहुत केयरफुल रहना होगा आपको स्टेटमेंट्स में। आपने फट से देखा उधर लिखा है डीपीएसपीज आई मीन एज एन एग्जामिनर आई विल डेफिनेटली पुट दिस स्टेटमेंट, डीपीएसपीज आर आल्सो राइट्स, बस इतना ही लिखना होगा। अब कॉन्टेक्स्ट से नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट में ये समझ आना चाहिए आपको कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू आस्क यू। DPSPs are also rights, but they are not legal rights, they are not fundamental rights because they are not enforceable. But these are also rights. अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी सोशलिज्म तो सोशो इकोनॉमिक राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर सोशो इकोनॉमिक राइट्स तो डीपीएसपीस में दिए है ना। वेलफेयर स्टेट आएगा तो वेलफेयर सबका होगा ना। राइट टू एजुकेशन की बात करी है ना डीपीएसपी में भी, प्राइमरी लेवल पे थी, अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जब पहले जो डीपीएसपी में लिखा था वो 21 बन गया, प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। तो उधर उन्होंने क्या लिख दिया, उधर उन्होंने लिख दिया अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ राइट बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट इज नॉट अ लीगल राइट। कह सकते हो बिकॉज इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब कुछ राइट्स में आ ही जाता है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है ना, हमारा ही राइट इंश्योर करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे भी कुछ सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा, मॉडर्न मॉडर्न आइडियाज होंगे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर एवरीवन। So there's a collective set of rights. DP fundamental rights are more civil political and therefore they are more individual oriented. I am saying more, and DPSPs are more socialist and therefore there is more collectivist and society orientation. अभी हम लोग जब DPSP और फंडामेंटल राइट्स का टेबल बनाएंगे ना डिफरेंस का, उसमें आई विल गिव यू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स डिराइव्ड, इतने पॉइंट्स लिखेंगे उसमें सो दैट यू नो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सेट ऑफ राइट्स। आई होप वी आर क्लियर विथ ऑल ऑफ दिस। और एक बचा है ना सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। तो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स आर राइट्स विच आर related to ensuring a decent living status or standards, which will include what? That will include what? From basic needs, right? Income or wealth हो गया, etc. This basic minimum needs of people, income requirements, livelihood securities, minimum wages, right to work. MG Narega, is it a right? MG Narega is a right. How is it a right? Is it a legal right? Because it has been given by law. It's a legal guarantee. It's a legal right. Legal right to get employment. Those who are willing to do the unskilled manual work, उनके लिए है राइट। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए जो रेडी है, क्योंकि उसके अंदर अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क ही होता है। मशीन्स आर नॉट अलाउड इन एमजी नरेगा प्रोजेक्ट्स, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेबर इंटेंसिव होगा। राइट टू प्रॉपर्टी इज व्हाट राइट? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी इज विच टाइप ऑफ राइट? इसमें बताओ, उधर का तो पता है लीगल राइट है, इट्स ओके। इसमें बताओ, इसमें सिविल राइट। आई मीन सिविल राइट कैसे हो सकता है यार बिना किसके किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? सिविल तो नहीं होगा, राइट? सोशियो इकोनॉमिक होगा, बट राइट टू प्रॉपर्टी तो लिबरल है, फिर सोशियो इकोनॉमिक कैसे हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी तो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड हो गया ना, वेल्थ। ये एक अलग ही टाइप का राइट होगा, इसको बोलेंगे पॉलिटिको इकोनॉमिक राइट। इट विल नॉट बी सोशल, बिकॉज आप जब प्रॉपर्टी एक्वायर करो दूसरे को नहीं मिल रही। हाँ, बहुत लिमिटेड, अभी इतने सारे लोग में कितनी अनलिमिटेड लोग हैं। The problem is the situation also, but you can call it as a politico-economic, क्योंकि वो political इसलिए है क्योंकि वो right to property, it is bringing right to enterprise. Right to enterprise means right to do business.
आप बिजनेस क्या कर पाओगे बिना प्रॉपर्टी के, बिना वेल्थ के? नहीं कर पाओगे, राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, तभी तो उन्होंने बोला भाई, जब सबसे पहले राइट्स देने की बात हुई यूरोपियन कंट्रीज में, ब्रिटेन में, जॉन लॉक ने बात जब करी तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी बोला. दे आर इसेंशियल राइट्स, बेसिक राइट्स, सो इट्स लिबरल इन नेचर, इट इज पॉलिटिकल. अब वो सिविल नहीं है लेकिन पॉलिटिकल राइट है, और कहीं ना कहीं उसमें इकोनॉमिक कंपोनेंट भी है. So better you can say it as a politico-economic, but overall you can say it's a political right, which help you to have the right to enterprise. Very interestingly, right to life, liberty and property का जब expression use हुआ यूरोप में, उसके बाद जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन लिखा जा रहा था, who has written that? Thomas Jefferson. No, not Benjamin Franklin. Thomas Jefferson and Alexander Hamilton. They wrote the अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. उसमें उन्होंने राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की जगह राइट लाइफ, लिबर्टी तो लिखा, लेकिन प्रॉपर्टी की जगह क्या लिखा? प्रॉपर्टी की जगह लिखा, देयर इज अ वेरी पॉपुलर मूवी इन दैट नेम, हॉलीवुड मूवी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस. Okay, there's a movie Pursuit of Happiness, which is their right to life, liberty and pursuit of happiness. तो प्रॉपर्टी को रिप्लेस किससे किया? परसूट ऑफ हैप्पीनेस से किया, बिकॉज उनके लिए प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, दैट इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस. दैट शोज द enterprising, focus on the enterprise, focus on business, focus on capitalism, focus on liberty, and that is why they have Statue of Liberty and we have Statue of Unity. Okay, these are symbolic values which you are trying to establish, right, of your constitution, of your state. I hope we are clear with this. Okay.